ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر ہیں جہاں پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کیپٹن فراز الیاس کی انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور اس کے بعد انہوں نے میت کو کندھا بھی دیا اور اس کے بعد پورے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز وزیر اعظم کی کیپٹن فراز الیاس شہید کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی اور اس کے بعد ان کے اہل خانہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی۔ ان کی والدہ محترمہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ان کے والد محترم سے بھی ان کی گفتگو ہوئی، ان سے بھی انہوں نے بات کی، اظہار تعزیت کیا، اظہار ہمدردی کیا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ان کی والدہ محترمہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شہادت کا جام نوش کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ عظیم رتبہ بخشتا ہے، مقام بخشتا ہے۔ قرآن کریم اس بات کا جگہ جگہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کو، یہ زندہ ہیں۔ تو یعنی یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا اور 19 جون کو میں نے سنا ان کا نکاح بھی تھا، لیکن یہ عظیم قربانی آپ کے صاحبزادے کی، کیپٹن فراز الیاس کی، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ انشاءاللہ یہ خون یہ ظہور رنگ لائے گا اور یہ ملک کے لیے جو انہوں نے اپنی جان پیش کی ہے انہوں نے اور دوسرے جوانوں نے، اور اس طرح اور ہمارے اس ماضی میں ہزاروں افسروں جوانوں نے جو اپنی جانیں پیش کی ہیں اور شہادت کا جام نوش کیا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس حوالے سے بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیٹے نے شہادت کا جام نوش کیا اور سارے خاندان کے لیے وہ اگلی جہان میں جنت میں مقام بنا گیا، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، لیکن دنیا میں ظاہر ہے کہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید کیپٹن فراز الیاس کی والدہ محترمہ سے انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس بات کی گواہی دیتا ہے جگہ جگہ کہ ان کو مردہ مت کو زندہ ہیں، تو اپنے لیے بھی اور آپ پورے خاندان کے لیے وہ جنت میں سب کے لیے مقام بنا گئے۔ اللہ ہمیں آپ کو صبر دے، یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں نے سنا تھا کہ 19 جون کو ان کا نکاح ہونے والا تھا، تو بہرحال یہ اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو صبر اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وزیر اعظم محمد شہباز وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید کیپٹن فراز الیاس کی تدفین کے بعد انہوں نے گفتگو کی۔ ان کی والدہ محترمہ سے انہوں نے اظہار تعزیت کیا، ساتھ ہی والد محترم سے بھی انہوں نے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور شہید کا خون کبھی رائے کا نہیں جائے گا، اور آپ بے فکر رہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ دہشت گردی کی تمام تر کارروائی سے ختم کی جائے، شہید کی قربانی کو رائے کا نہیں جانے دیں گے۔ شہید اس قوم کا فخر ہے اور ہمیشہ سے شہید نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو فوجی ہیں اور جس طرح سے ہمارے جوان ہیں، انہوں نے ملک کی خاطر ہمیشہ سے جان قربان کی ہے اور ہمیشہ سے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اور آپ کے بیٹے نے بھی آج یہی فرائض سر انجام دیے ہیں، اور شہید کا خون کبھی رائے کا نہیں جائے گا، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ہم نے یہی کہا ہے کہ شہید کی قربانی جو ہے وہ ہم رائے کا نہیں جانے دیں گے، ان کے ہر خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہداء نے عرض پاک کے لیے یہ قربانی دی ہے اور ان کی قربانی کو ہمیشہ اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر یاد رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو شہادت نصیب کرتا ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے، دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے پاک کرنے کے لیے ہر اقدامات کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید کیپٹن فراز الیاس کی تدفین کے بعد انہوں نے ان کی والدہ محترمہ سے اظہار تعزیت کیا، ساتھ ہی والد محترم سے بھی انہوں نے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، شہداء نے عرض پاک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے
और दहशत गर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लाएगा और उनके खून को हम रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, तमाम तर जो इक़दामात हैं उसको करने की कोशिश की जा रही है और जल्द अज जल्द दहशत गर्दी की तमाम तर कार्रवाइयों को रोकेंगे और जो दहशत गर्द हैं उनको जल्द अज जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहदा ने अर्ज़ पाक की अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और मुल्क की खातिर उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला खुशनसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की और नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्होंने मैयत को कंधा भी दिया और उसके बाद तदफीन का तमाम तर इंतज़ाम किए गए। उन्होंने मैयत में मट्टी भी डाली और पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ कैप्टन शहीद फराज इलियास को सुपुर्द खाक किया गया और तदफीन के बाद उन्होंने उनकी वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि कुरान गवाही देता है कि शहदा जिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। पूरा प्रोसेस शुरू कर दें। कैप्टन फराज इलियास शहीद गाँव का इसको आप और मिसाली गाँव भी बनाएं इसको। सर आपकी इजाज़त से एक ब्रिज भी नया बन रहा है, उसका नाम भी आपकी इजाज़त से ब्रिज ने शहीद कैप्टन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन फराज इलियास की तदफीन के बाद उन्होंने उनकी वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि शहदा के खून को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। कुरान गवाही देता है शहदा जिंदा हैं। उन्होंने साथ ही ये कहा कि अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे और दहशत गर्दी की जो लानत है उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने ये उनके वालिदैन को यकीन दिलाया कि हम तमाम तर इक़दामात कर रहे हैं और उनके खून को रायगा नहीं जाने देंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम के हमरा मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने उनसे गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि शहदा ने अर्ज़ पाक पर अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और इन शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कुरान गवाही देता है कि शहदा जिंदा हैं। अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लेकर आएगा, उसको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से भी मंसूब कर दिया। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म का शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि शहीद की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और साथ ही शहदा ने अर्ज़ पाक के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी इन कुर्बानियों की खातिर ही आज हम इस मुल्क के अंदर एक सुख का सांस ले रहे हैं और एक महफूज जो है वो तरीके से हम यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि शहदा की वजह से ही हमारा मुल्क जो है वो महफूज है और ये फ़ौज की वजह से ही हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी अमन व अमान है वो कायम है और फ़ौज के जवानों ने इस वक्त जो है वो इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम किया हुआ है। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क का जो है वो अमन कायम किया है और उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे। शहीद की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं हो सकती। शहदा ने अर्ज़ पाक के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कुरान गवाही देता है कि शहदा जिंदा हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत के रुतबा अता करता है और ऐसे में कैप्टन फराज इलियास शहीद भी हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लाएगा, कभी रायगा नहीं जाएगा और कोशिश है तमाम तर इक़दामात हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं और उसके लिए तमाम इक़दामात भी कर रहे हैं और हम वक्त तमाम तर जो फोर्सेस हैं वो भी तैयार खड़ी हैं। शहीद की कुर्बानी को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये भी उनको यकीन दिलाया कि हर मुमकिन इक़दामात हो रहे हैं और दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हर मुकम्मल कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि दहशत गर्दी की लानत से मुल्क को पाक किया जाए। वज़ीर आज़म का शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि शहीद हमेशा से ज़िंदा हैं और इसकी गवाही कुरान देता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने परेशान नहीं होना, हम तमाम तर इक़दामात कर रहे हैं और इस मुल्क का अमन किसी को भी
ख़राब नहीं करने देंगे। इस मुल्क की कुर्बानियाँ जिन्होंने भी दी हैं उनको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन फराज इलियास की तदफीन के बाद उन्होंने उनकी वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम से गुफ्तगू की, इज़हार ताज़ियत की उन्होंने और इज़हार हमदर्दी किया। उन्होंने शहीद की वफ़ात पर गहरे दुख और गम का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि शहीद का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। कुरान गवाही देता है कि शहीद ज़िंदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम एक मुल्क के अंदर एक हिफाजत के साथ जो है वो सांस ले रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम इस वक्त इक़दामात कर रहे हैं वो उनके इक़दामात की रोकथाम के लिए तमाम तर चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत नसीब करता है। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून जो है वो रंग लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से भी मंसूब कर दिया और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म की शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने की भी हिदायत की गई है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहीद कैप्टन फराज इलियास के वालिदैन के साथ मौजूद हैं। उनसे उन्होंने गुफ्तगू भी की है, साथ ही उनसे इज़हार ताज़ियत भी किया गया और गहरे दुख और गम का इज़हार उनकी जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि शहीद की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शहीद के खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। शहदा ने अर्ज़ पाक के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुरान मजीद गवाही देता है कि शहदा ज़िंदा हैं और शहदा का खून जो है वो कभी रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे और उसके लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लेकर आएगा, उसको कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के शहीद गाँव को मॉडल